Hello young champs, welcome to Magnet Brains. My name is Tess and we are starting off with a new unit today. And just look at it, what is the name of your poem? Why? You know, world में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है why. Anything, you can ask why for anything. Why is the sun rising? Why is it raining? Why is the school not giving holidays? Why is there so much of homework? Why does mummy wants me to get up in the morning? Why का कोई कंट्रोल नहीं है. आप जितना why पूछना चाहते हो आप उतना why पूछ सकते हो, right? So this poem is about why, and why is a basic instinct of human beings. क्यों? क्योंकि why से curiosity बनती है, and humans are the most curious animals on this world. सही में? चले देखें. So the poem is about a little boy who is always very curious. So the poem goes like this. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not, why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flower dies. Some of these whys are not too hard to answer if you'll try. Others no one ever yet has found the reason why. Right? So the poem is about a curious little boy. Curious is jigyasa. Curiosity is jigyasa. When you are very eager to know something, learn something. आपको जब कुछ जानने की इच्छा रहती है हमेशा, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये कहाँ है, वो कहाँ है. Have you seen, जब आप छोटे छोटे होते हो ना, आपकी एज पे you want to know everything around you, है ना. हर चीज़ के बारे में you question, and it's a very good habit. You should build that habit in fact. अगर आप सोचते हो कि छोड़ो रे, नहीं जानना मुझे, नहीं. You should always be curious to know कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है. So the poem is about a little boy who always keeps on asking why. वो हर चीज़ के लिए why पूछता रहता है. Why this, why that, why then, why now? ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? Why not and why by the why? तो these are all questions for why. उसको बस जानना है क्यों 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 क्यों. ठीक है. He wants to know why wood should swim. आपको पता है लकड़ी का एक टुकड़ा अगर आप पानी में डाल देते हैं, it does not drown. वो पानी के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर पड़ा रहता है. उसको जानना है कि क्यों वुड को जब आप पानी में डालते हो वो डूबता नहीं है, ऊपर रहता है. Why lead and marble sink. वहीं वुड की जगह अगर आप कंचा डाल दो, कंचा होता है ना, कंचा खेलते हैं, कंचा डाल दो, या फिर आपके पेंसिल के लेड होता है ना, वो टिक टिक वाली पेंसिल्स जो होती है जिसमें से लेड निकलता है, दैट लेड उसको डाल दो, वो दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं, वो डूब जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Why sun should shine and wind should blow. Now he is asking, sun को क्यों चमकना है, क्या ज़रूरत है सन को चमकने की, एंड विंड जो चल रही है क्यों चल रही है, क्या ज़रूरत है, एक जगह रुक के रह सकती है. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. हम क्यों खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, क्या ज़रूरत है हमें खाना खाने की या फिर पानी पीने की. He wants to know what makes the clouds. उसको जानना है कि clouds कैसे बनते हैं. And why they cross the sky. And एक बार जब बन गए तो ये एक जगह टिके क्यों नहीं रहते, ये क्यों इधर से उधर घूमते रहते हैं. Why sinks the sun behind the hills. सन शाम को हिल के पीछे क्यों छुप जाता है. And why the flower dies. एक फ्लावर जब आपके गार्डन में या फिर आसपास गमले में या फिर बुके में जब एक फ्लावर आता है कितना प्यारा लगता है ना, बट आफ्टर 1 वीक और 5-6 डेज ये मुरझा जाता है एंड द फ्लावर डाइज. ऐसा क्यों होता है? Some of these whys are not too hard to answer if you try.
इनमें से कुछ जो वाई हैं जो बच्चे पूछते हैं, कुछ वाई आंसर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन आंसर देम। थोड़ा सा ट्राई करो आंसर फाइंड आउट करने के एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर, यू कैन आंसर देम। अदर्स नो वन एवर येट, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, जिसका कोई रीज़न किसी को नहीं पता है, उसके रीजंस नहीं पता हमें वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं, उसका जितना भी कोशिश कर लो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो देर आर मेनी क्वेश्चंस जिसके आंसर्स हमारे पास हैं, बट ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमारे पास नहीं हैं। सो इट इज़ गुड, ऑलवेज गुड टू आस्क वाई। यू शुड मेक इट अ हैबिट टू आस्क वाई। कोई भी चीज़ आपके आसपास आपको दिखेगी ना, आस्क क्वेश्चंस। मम्मा से पूछो, पापा से पूछो कि क्यों होता है ऐसा, कब होता है, कहाँ होता है, किस लिए होता है, ठीक है। यू शुड कीप ऑन आस्किंग, राइट। सो द पोएम गोज लाइक, we'll do it once more. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the way. So the जो poet है, he talks about a little boy who is always curious about everything that happens around him, and he keeps on asking why this, why that, why ये क्यों, वो क्यों, किस लिए, किस लिए, किस लिए, ठीक है। he keeps on asking. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know कि why कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें जब आप पानी में डालते हो वो डूब जाती हैं, कुछ ऊपर ही रहती हैं, सन क्यों चमकता है, हवा क्यों चल रही है, एंड हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है, राइट। सो ही keeps on asking about these questions. Next is, he wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flower dies. Now he wants to know कि clouds कैसे बनते हैं, and अगर बनते भी हैं तो ये ऐसे घूमते क्यों रहते हैं, एक जगह टिकते क्यों नहीं हैं। Then he wants to know कि जो फ्लावर्स हैं वो कुछ टाइम के बाद क्यों उनकी डेथ हो जाती है, एंड सन शाम के टाइम क्यों छुप जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू ट्राई। इनमें से कुछ वाइज के आंसर जो हैं वो आप अगर ट्राई करो तो आपको आसानी से मिल सकते हैं, बट ऐसे भी कुछ वाई हैं जो आपको नहीं पता, आप उसके आंसर्स नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। So that was your poem. Summary goes like, being curious is a human nature. Human nature होता है curious होना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानना human का एक nature है, inbuilt nature है। Particularly young children, they are curious about everything around them. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके जैसे जो बच्चे हैं, you are always curious to know everything around you, about everything. मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको बहुत इच्छा होती है कि पता करना है, बस पता करना है किसी भी तरह। नेचर, पीपल, साउंड, एवरीथिंग दैट दे हियर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एक्साइट्स देम एंड दे वांट टू नो मोर। नेचर, साउंड, साइट, जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं, इन सब के जो भी न्यू चीज़ आपको दिखती है, दे ऑलवेज एक्साइट यू, आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, and then you want to know more about it, right? So that is all in this chapter. The chapter goes like why. We are doing our exercises for a poem, right? We are doing our exercises for a poem why, right? You remember the poem? Poem yaad hai sabko? The poem is about a curious little boy who wants to know about everything that is happening around him, right? He always wants to ask why. उसको जो भी दिखता है आसपास, जो भी हो रहा है आसपास, he wants to know why, right? So the poem is, the poet says कि the child, जो छोटा सा बच्चा है, he wants to know कि why some things get drowned in the water, some sink, some do not, then sun क्यों हिल के पीछे छुप जाता है, then और क्या पूछा था उसने, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, एंड बन भी रहे हैं तो वो एक जगह क्यों नहीं खड़े रहते, हमें खाना क्यों खाना पड़ता है, हमें पानी क्यों पीना पड़ता है, राइट। ऐसे बहुत सारे वाई 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 वाले क्वेश्चंस।
So that was your poem. So we have some new words in this poem. Curious. What is curious? I have already told you what is curious. It is the interest to know something new, to know something, learn something new. Interest to learn or know about something. वो न्यू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट. लेड इज अ मेटल. ठीक है, लेड इज अ मेटल. लेड क्या होता है? लेड इज अ मेटल. आपका पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, राइट. देन इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में भी आपको लेड मिलेगा. मार्बल क्या होता है? इट इज़ अ स्टोन. कंचे होते हैं ना, सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोन. सिंक, डूब जाना. ठीक है, पानी के अंदर चला जाना. रीज़न, कॉज. आप कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? द रीज़न मतलब वो क्यों कर रहे हैं, उसका कॉज बताना. ठीक है. सो CURIOUS, क्यूरियस. LEAD, लेड. MARBLE, मार्बल. SINK, सिंक. REASON, रीजन. ओके. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक. सिंक करना मतलब पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा. सो स्टोन है ना, स्टोन पानी में डालोगे तो ऊपर रहेगा क्या? नो, इट विल गो डाउन. जितनी भी हैवी चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल स्टोन. देन देर इज ज्वेलरी. देन बॉटल विथ समथिंग. नाउ अगर खाली बॉटल को ही पानी में डालोगे तो वो नहीं डूबेगा, वो ऊपर रहेगा. बॉटल के अंदर कुछ भर के, बॉटल भारी करके डालोगे, देन वो नीचे जाएगा. सो डू वन थिंग, यू कैन गो इन टू द किचन, आस्क योर मदर, शी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट सम छोटा थिंग्स इन द किचन दैट विल सिंक इन द वाटर. जब आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा, राइट. सोप. फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में, स्टडी रूम में मिल जाएंगी, जो भारी है, एंड आप पानी में डालते वो नीचे चली जाएगी. लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द बॉय आस्क्स. वो बच्चा क्या क्या पूछता है उसके बारे में यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चंस. व्हाई डू वी ईट एंड ड्रिंक? Why does the sun go behind the hills? Then, why do some things sink in the water? Right? So, why do we eat and drink? Why does the sun go behind the hills? And why do some things sink in the water? These are some of the questions. Ab not necessary that you have to write these questions. You can write why the clouds are made, why the clouds keep moving. फिर और क्या क्या पूछा था उसने? Remember anything else? वाटर का पूछा था, स्काई का पूछा था. फिर देन एनीथिंग एल्स? सो यू कैन जस्ट रीड द पोएम एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने लिखा वही चीज़ें लिखनी है. यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग. ठीक है. देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट ही आस्क. वॉट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? सैड, क्यूरियस या ब्रेव? जो पोएम में बच्चा है हमारा
वो सैड है, क्यूरियस है या ब्रेव है? सैड, दुखी, क्यूरियस, उसको सब जानना है, एंड ब्रेव, बहुत ही धैर्यशाली बच्चा, मतलब उसको डर नहीं लगता। कैसा बच्चा था? क्यूरियस, राइट? ही वॉज क्यूरियस, उसको जानना था सब कुछ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है? सो ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड. Ram is a curious little boy. He is always asking questions. One day he came home and asked his grandfather questions like, okay, Ram is a curious little boy. हमारे poem में जो boy है वैसे ही एक boy है Ram, and he is very curious about everything. So one day he comes back home. एक दिन वो घर वापस आता है and grandpa से कुछ questions पूछता है. We have to answer them. Okay? Why can't we look at the sun during a solar eclipse? Solar eclipse क्या होता है पता है? आपको पता है अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. अर्थ हमारा जो अर्थ है वो घूमता रहता है ऐसे, अपनी जगह पे, ऐसा नहीं, ऐसे. मेरा हाथ इतना ही मुड़ेगा तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ. लाइक इफ दिस इज योर अर्थ, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो ये ऐसे घूम रहा है, राइट? अपने जहाँ है वहीं पे. इसके अलावा ये सन के चक्कर भी काटता है ऐसे. इसीलिए डे एंड नाइट और डिफरेंट वेदर्स होते हैं, राइट? सो दिस अर्थ कीप्स मूविंग ऑन इट्स एक्सिस. वो अपनी जगह पे भी घूमता है एंड सन के चक्कर भी काटता है. नाउ इस चक्कर काटने के प्रोसेस के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब क्या होता है, सन, अर्थ कहाँ गया? अर्थ को कहाँ बनाया हम? ये आपका सन है एंड ये आपका अर्थ है, ठीक है? चलेगा ऐसा? चलेगा ना? हाँ, ये सन है एंड ये अर्थ है. एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा जो मून है वो अब मून भी अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है. ये सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है? अपने जगह पे भी चक्कर काटते हैं, ये एक दूसरे के आसपास भी चक्कर काटते हैं. अब इस चक्कर काटने के प्रोसेस के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब जो हमारा मून है वो सन के बिल्कुल सामने आ जाता है. एंड उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे शैडो पड़ती है, सन छुप जाता है. आपने न्यूज़ में, देन न्यूज़पेपर्स में देखा होगा ना, सोलर इक्लिप्स के बारे में बताते हैं कि व्हाट डू यू कॉल इट, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना? सो उस टाइम पे इट इज़ ऑलवेज टोल्ड कि आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना है. क्यों नहीं देखना है? डू यू नो द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज इट कैन डैमेज योर रेटिना. आपकी जो आईज है, आईज सबके अलग अलग कलर्स का प्यूपल होता है ना. आपका जो आईज है ये जो आइरिस पोर्शन है ये सबका अलग अलग होता है ना. नाउ इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सन का जो डायरेक्ट रेज पड़ता है उससे ये खराब हो जाता है. इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस. इससे आपकी आंखें परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं. इसीलिए बोलते हैं कि जब सोलर इक्लिप्स होता है यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली. अंडरस्टूड? पूरा अंडरस्टूड नहीं है, आई नो, बट थोड़ा बहुत आइडिया मिला ना. चलो, सो व्हाई कैन वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स? वी cannot look at the sun during solar eclipse because it may damage our retina in eyes and
cause blindness. This is not an exam question, this is just an informative question. ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है. So we cannot look at the sun during solar eclipse because it may damage our retina in the eyes. आइज में जो रेटिना है उसको डैमेज करके it can cause blindness. Clear? थोड़ा बहुत clear, right? Okay. You'll be learning about solar eclipse and retina in your older classes. ठीक है, आगे के क्लासेस में जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तब आप सीखोगे, right? Why can't we touch the sun? Why can't we touch the sun? We cannot touch the sun because it is so hot that we cannot go near it. सन को क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि वो खुद इतना गर्म होता है कि हम उसके पास भी नहीं जा सकते. छूना बहुत दूर की बात है ना? Is it true? Right. We cannot touch the sun because it is so hot that we cannot even go near it. हम उसके पास भी नहीं जा सकते हैं. टच करना बहुत दूर की बात है. Why can't we go out to play in the dark? हम रात में बाहर जाके क्यों नहीं खेल सकते? We cannot go out and play in the dark because कैसे बोलोगे? We cannot go out and play in the dark because we may stumble and hurt ourselves. So अंधेरे में क्यों नहीं खेलना चाहिए? भूत आएगा? नहीं, हम गिर जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है ना. अंधेरे में कहीं पे भी लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ पड़ा हुआ है. एंड वी कैन स्टम्बल एंड वी कैन फॉल. स्टम्बल इज ऐसे गिर जाना, मतलब किसी चीज़ से ठोकर खा के गिरते हैं ना, दैट. ठीक है. सो वी कैन नॉट गो आउट एंड प्ले इन द डार्क बिकॉज वी मे स्टम्बल एंड हर्ट आवरसेल्व्स. अच्छी वाली चोट लग जाएगी फिर, राइट? Now, fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the colored words. आपको colored word के साथ कुछ rhyme करता हुआ word ढूंढना है poem में से. ठीक है? Why is the dash so high? Why is the sky so high? ठीक है? Do you know the color of no? No का क्या rhyming word है poem में? Let's see. No, no, no. He wants to know what the clouds across the sky, the single sun behind, die. Color of कुछ भी नहीं है ना? नहीं है. तो अब क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नो. नो के लिए ब्लो है, बट नो ब्लो का कोई कलर नहीं होता है. सो व्हाट विल यू राइट? नो द डू यू नो द कलर ऑफ? ओके. व्हाई इज द क्लाउड सो हाई? व्हाई इज द ओके छोड़ो. हैव यू फाउंड हु मेड द फाउंड? फाउंड के लिए भी कोई वर्ड है? नहीं है. फाउंड 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 क्लाउड हो सकता है. क्लाउड हो सकता है ना. फाउंड क्लाउड मार्बल लेड वुड ईट ड्रिंक नहीं है. ओके, वील राइट इट आवरसेल्व्स. कुछ नहीं है, पोएम में नहीं है. वाई इज द
Why is the sky so high? Do you know the color of flower? Have you found who made the cloud? Put the glass in the sink after you finish your drink. They are not perfect rhymes, but still काम चलाओ rhymes है, ठीक है? Poem में you will not find any perfect rhyme for that. Still चलेगा. Why is the sky so high? Do you know the color of flower? Color, okay, no नहीं. Color होता तो we could have given flower. कोई बात नहीं. Have you found who made the cloud? Put the glass in the sink after you finish your drink. Okay? Now, jumbled words. You have to unjumble them and write sentences. First one is done for you. No. Second is WISM. SWIM. Swim. I am learning how to swim. Next is DAEL. DAEL क्या होगा? डील से डील बन सकता है, बट LEAD. LEAD. I have a new lead pencil. Next, BLARME. BLARME. अलार्म. ALARM नहीं, और क्या है? मार्बल. MARBLE. Can I play with your marbles? Right? Next, LLIHS. HILLS. Hills. I am going up the hill. Done? Easy है? You can do it, right? Swim. I am learning how to swim. Lead. I have a new lead pencil. Marble. Can I play with your marbles? Hills. I am going up the hills. Now, ये तो सेम रहेगा, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. देयर इज नो कंपल्शन टू राइट वॉट आई राइट, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्कस एंड राइट. व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट? कोई रीजन है कैट एंड डॉग के फाइट करने का? डू यू थिंक? सोचो, हो सकता है क्या? देयर इज नो रीजन, राइट? सो there is no specific reason for their fight. उनका मन करता है इसलिए वो लड़ते हैं, है ना? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन थोड़ी है. Why do we walk across the road and not run? We do not run on the road because it is not safe. ये तो सबको पता है ना? रोड पे भागना चाहिए या चलना चाहिए? रन वाले पोएम में हमने देखा था कि जहाँ जगह मिली भागो, बट दैट डजंट मीन दैट यू रन ऑन द रोड, है ना? इट इज़ नॉट सेफ. रोड पे गाड़ियाँ आती हैं, दूसरे लोग चल रहे होते हैं, सो यू कैन गेट योर सेल्फ हर्ट. आप अपना एक्सीडेंट करवा सकते हो, किसी और का एक्सीडेंट करवा सकते हो. सो इट इज़ नॉट सेफ टू रन ऑन द रोड. वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? पीपल आइसक्रीम क्यों अच्छा लगता है लोगों को? People like ice cream
because it is sweet and cold. है ना, ठंडा ठंडा मस्त मस्त. Write down at least 2 questions using why. Okay, you have to find out questions for why. Why do stars shine? Why does the moon hide in the morning? Okay, so 2 questions with why. You can ask anything with why. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि यही 2 questions पूछो. You can ask anything with why. ठीक है, and then try to find out answer for that also. Right? So next you have a short poem. It's not actually a syllabus poem. It's just a extra poem. ठीक है. I met a man in an onion bed. He was crying so hard his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. He ate and he cried, but for all his tears he sang, "Sweet onions, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as a man can be." So the poem is about a man who loves onions. ठीक है, he loves onions. So I met a man, मैंने एक आदमी को देखा, he loved onions and he was eating an onion. वो इतना दुखी था अनियन खाते खाते, बिकॉज यू नो एक बिटर टेस्ट होता है ना, एक हॉट स्पाइसी टेस्ट आता है. आईज में से पानी आ रहा था, उसके नोज में से पानी आ रहा था, वो बेचारा इतना दुखी दिख रहा था, बट स्टिल ही लव्ड दैट ओनियन एंड ही वॉज ईटिंग इट एंड ही वॉज टेलिंग द अनियन क्या कि डियर अनियन, आई नो दैट आई लव यू बट एंड यू ऑल्सो लव मी, लेकिन तुमको खाते खाते ऐसे पानी आता है आईज में से, नाक में से, तुम मुझे इतना सैड कर देते हो जितना एक इंसान हो सकता है. राइट? सो इट्स जस्ट अ कैजुअल पोएम, इसमें कुछ सीरियस नहीं है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन लर्न इट, इट्स नॉट अ नेसेसिटी. ठीक है. I met a man in an onion bed. He was crying so hard his eyes were. वो इतना मुश्किल से अनियन खा रहा था, उसकी आईज रेड हो गई थी, पानी आ रहा था उसमें से. And the tears rolled off the end of his nose. वो रोल करते करते आईज में से भी, नोज में से भी टीयर्स आ रहा था. As he ate his way down the onion rows. एक एक करके वो अनियंस देखा है ना आपने, एक एक लेयर होता है. So one लेयर वो खा रहा था. He ate and he cried, but for all his tears. खाते खाते रोते रोते भी जा रहा था, खाते खाते खा भी रहा था, रो भी रहा था. साथ साथ में क्या बोल रहा था? डियर अनियन, आई लव यू एंड आई नो दैट यू लव मी. मुझे पता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें भी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, लेकिन तुम्हें काटने में, खाने में इतना बुरा हाल कर देते हो तुम मेरा, जितना एक नॉर्मल इंसान का हो सकता है. वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू स्टोरी टुडे, एंड व्हाट इज द स्टोरी? एलिस इन वंडरलैंड. आई डोंट थिंक आप में से कोई भी होगा जिसने एलिस इन वंडरलैंड के बारे में नहीं सुना. इज देयर एनीवन? अगर कोई है तो प्लीज़ 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 टेल योर पेरेंट्स कि जल्दी से तुम लोग को एलिस इन वंडरलैंड की बुक दिला दे. इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी. ब्यूटिफुल मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल, सच में. इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स. मैम जब छोटी थी ना, मैं तब से वो बुक रीड कर रही हूँ, तो यू विल लव इट. आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो एलिस इन वंडरलैंड इज़ अ बिग स्टोरी, जिसमें से आपको छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है. ठीक है. सो इट्स अबाउट अ गर्ल नेम्ड एलिस. her name was Alice, and the novel is written by Lewis Carroll. Lewis Carroll. किसने लिखा है? Lewis Carroll. बाकी कुछ भी भूल जाओ, इस स्टोरी के ऑथर का नाम मत बोलना. ठीक है. कई बार जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बिकॉज एलिस इन वंडरलैंड वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है. ठीक है. सो विल स्टार्ट ऑफ विद द स्टोरी. वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. एक दिन एलिस गार्डन में बैठी हुई थी. ठीक है. एक ट्री के नीचे क्या कर रही थी?
उसकी बहन, उसकी एल्डर सिस्टर एक बुक रीड कर रही थी एंड शी वॉज लुकिंग एट इट, ठीक है. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. सडनली उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? एक वाइट रैबिट पे, एंड वो रैबिट स्कैम्पर कर रहा था. व्हाट डज स्कैम्पर मीन? स्कैम्पर मीन्स किसी से डर के जब आप जल्दी जल्दी भागते हो ना, मतलब आपका कोई पीछा करता है तो कैसे भागते हो? ऐसे 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 ऐसे, राइट. मतलब पीछे बार बार देख रहे हैं, आगे बार बार देख रहे हैं, एकदम टेंशन में जब आप भागते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्कैम्पर. सो उसने देखा कि एक वाइट रैबिट वहाँ से भागता हुआ जा रहा है. ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. ब्लू कोट वाला रैबिट देखा है कभी? यहाँ देखने को मिलता है. उसकी आईज पिंक कलर की थी एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था उसने. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट. उसके वेस्ट कोट के पॉकेट, वेस्ट कोट मतलब कोट के अंदर जो आप वेस्ट कोट पहनते हैं बॉयज, आपके कोट के अंदर एक और कोट पहनते हो ना छोटू सा, दैट इज योर वेस्ट कोट. दैट इज योर वेस्ट कोट. नाउ जो रैबिट था वो जल्दी 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 चल रहा था एंड उसने जल्दी में अपने वेस्ट कोट में से एक वॉच निकाला, बड़ा सा वॉच, ठीक है, पॉकेट वॉच, एंड उसमें टाइम देख रहा था. एंड ही हरीड अवे एंड टाइम देखते और तेजी से चलने लगा वो. ही सेड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. वो क्या बोलता है? अरे बाप रे मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. अब एलिस क्या सोचने लगती है? कुछ तो अजीब है इस रैबिट में, राइट, है ना? इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. कौन सा रैबिट देखा है आपने जो कपड़े पहनता है, बातें करता है, उसके पास वॉच होती है? नहीं होती है ना. सो एलिस सोचने लगी ये रैबिट, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है. ये बोल रहा है, इसने कोट पहना हुआ है, इसके पास एक वॉच है. सो एलिस वंडर्ड मतलब हैरान होना. अ टॉकिंग रैबिट, अरे बात करने वाला खरगोश. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहना है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मतलब उसको जानने की इतनी बुरी वाली इच्छा हो रही थी. क्यूरियोसिटी, जब आपको कुछ नया सीखने की, कुछ जानने की भयंकर इच्छा होती है ना, दैट इज क्यूरियोसिटी. सो शी वॉज बर्निंग वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? टू शो द इंटेंसिटी, कि वो कितनी बुरी तरह चाहती थी कि मेरे को जानना है, मेरे को तो बस जानना ही है, ठीक है. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एंड एलिस ने क्या किया? रैबिट के पीछे पीछे पीछा करने लगी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. अभी तक रैबिट तेजी से बस ऐसे चल रहा था, अब वो भागने लगता है एंड एलिस उसके पीछे 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 भागती है. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. पॉप्ड मतलब कूदना, ठीक है. रैबिट्स को देखा है ना, हॉप करते हैं. सो दिस रैबिट, ये भागता हुआ गया, एक होल था वहां पे, रैबिट होल, एंड वो ही पॉप डाउन मतलब उसमें कूद गया. एलिस जम्प्ड इन द रैबिट होल टू. एंड वो रैबिट होल इतना बड़ा था कि एलिस भी उसके अंदर जंप कर गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल एंड दिस होल वाज सो डीप. इतना नीचे था कि ये दोनों गिरते जा रहे थे. ऐसा लग रहा था ये खत्म ही नहीं होएगा, पहुंच ही नहीं रहे नीचे. एलिस सेड अलाउड. एलिस ने जोर से चिल्लाया, वेयर एम आई, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन. अब एलिस क्या बोलती है जोर से चिल्ला के? अरे बाप रे, मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रही हूँ, मैं कितना नीचे आ गई हूँ. हाउ मेनी माइल्स मतलब जैसे किलोमीटर्स होता है ना, वैसे ही मेजर करने का एक तरीका होता है माइल्स. सो शी सेज कि मैं कितना नीचे आ गई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ. ओके, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब उसको क्या लगता है? मैं पक्का अर्थ के सेंटर में पहुंचने वाली हूँ. शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. उसे क्या लगता है ये अर्थ है, हाँ,
यहाँ पे होल में उसने जंप मारा एंड वो नीचे गिरती जा रही है। उसको लगा कि वो अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाएगी। अर्थ का सेंटर बहुत गर्म होता है ना, अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाएगी। फिर वो सोचती है, हे भगवान, अब ऐसा ना हो कि मैं सेंटर भी क्रॉस करके अर्थ की दूसरी साइड से बाहर निकल जाऊं। धम, गिरते हैं ना धम करके, दैट इज धम। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब ड्राई लीव्स को जमा करके ऐसे रखा हुआ था, तो वो गिरते 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 उसमें जाके गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली। उसने जल्दी से आसपास देखा कि कौन है, क्या है, मैं कहाँ हूँ। एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन, एंड देन अगेन उसको उसका वाइट रैबिट दिख गया। इट डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड गायब हो गया। DISAPPEARED, disappeared, saying, oh no, my ears and whiskers. अब जो रैबिट है वो भी उसके साथ ही नीचे गिरा था, वो भी आसपास देखता है, अगेन क्लॉक दिखता है और फिर क्या बोलता है, oh no, my ears and my whiskers. रैबिट का ears और whiskers क्या होते हैं? What is ears and whiskers? जो आपका रैबिट है, रैबिट कैसा दिखता है? ओके, अभी फिलहाल इसी रैबिट से काम चलाते, ठीक है? ओके, दिस इज विस्कर्स। यहां पे होती है ना, दैट इज विस्कर्स एंड दिस इज ईयर्स। ओ हाँ, थोड़ा बहुत तो लग रहा है रैबिट जैसा, है ना? माउस जैसा लग गया है, कोई बात नहीं। इमेजिन करो दिस इज अ रैबिट, सो दिस इज विस्कर्स। जो यहाँ होती है ना रैबिट्स की, दैट इज विस्कर्स एंड दिस इज ईयर्स। तो हमारा रैबिट क्या बोलता है, ओह माई विस्कर्स एंड माई ईयर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। मैं बहुत लेट हो गया हूँ। वो पक्का कहीं बहुत ही लेट हो रहा था, तभी इतनी बार बोल रहा है। एलिस स्टूड अप and saw a small door about 15 inches high. वो खड़ी हो जाती है, आसपास देखती है एंड उसको उस डोर रूम के कोने में पता है एक डोर दिखता है। एंड हाउ, कितना लंबा था? 15 इंचेस। जो आपका पेंसिल बॉक्स में स्केल आता है ना, उससे भी छोटा, उतू सा ही एक डोर दिखता है उसको। नाउ इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। इतना पिद्दू से डोर में से आपका सिर निकलेगा? नहीं, हाथ भी नहीं निकलेगा। सो शी लुक्स इनटू इट एंड वो रियलाइज करती है कि ये तो बहुत छोटा है, मैं तो इसमें से निकल नहीं सकती। शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, एंड और ढूंढने पे उसको उसके रूम में एक ग्लास टेबल मिलता है। उस पर क्या रखा हुआ था? एक गोल्डन की रखा हुआ था। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. अब वो क्या करती है, ढूंढती है एंड उसको एक गोल्डन की मिलता है, वो उठा लेती है एंड बड़ी मुश्किल से जाके उस डोर को खोलने की कोशिश करती है एंड लकीली वो खुल भी जाता है। डिलाइट मतलब खुशी, मतलब वो इतनी खुश हो गई कि वाओ यस खुल गया। अब उसके उस साइड क्या है ये उसको पता चल जाएगा। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. वो धीरे से झुक के डोर खोलती है, खोल के अंदर दिखती है तो उस तरफ वर्ल्ड का सबसे लवलीस्ट गार्डन था। उसने इससे अच्छा गार्डन कभी नहीं देखा था, इतना प्यारा गार्डन था। How she longed to be among those beds of bright flowers. उसका इतना मन किया कि काश मैं छोटी होती तो मैं अभी उस गार्डन में जा सकती थी। बेड ऑफ फ्लावर्स मतलब जहाँ पे फ्लावर्स खिले हों, मतलब एक लार्ज एरिया जहाँ पे फ्लावर्स खिले हों। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, फाउंटेन्स क्या होता है? FOUNTAINS, फाउंटेन्स, फव्वारे जिसमें से पानी आता है ना, गार्डन्स में पार्क्स में होता है ना। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो इतनी बड़ी थी एंड वो डोर इतना छोटा था कि वो अपना सिर भी नहीं डाल सकती थी उसके अंदर। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर। सो वो विश करती है कि ओह काश मैं छोटी होती
तो इस डोर में से अक्रॉस जा सकती थी. She exclaimed loudly. EXCLAIMED, exclaimed मतलब थक के, मतलब बुरा फील करके बोलना. Oh no, वाला फीलिंग आता है ना, that exclaim. ठीक है. So she exclaimed loudly. LOUDLY, loudly मतलब जोर से बोला. ठीक है. So that is your story. यहाँ तक पता चल गया ना. So Alice was reading a book with her sister one day. एक दिन Alice अपने सिस्टर के साथ बैठ के एक बुक पढ़ रही थी. And all of a sudden she sees a rabbit. एकदम से उसको एक rabbit दिखा. And there was something special about this rabbit. क्या? He could speak. He was wearing a blue coat, a red waistband. ठीक है? And he had a watch. वो बार बार वॉच देख के बोल रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा. एंड वो तेज़ी से कहीं पे जा रहा था. सो एलिस क्या करती है, इसके पीछे 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 निकल जाती है देखने के लिए कि कहाँ जा रहा है. सो ये जाते 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 रैबिट एक बड़े से होल में जंप मार देता है. एलिस भी उसके पीछे निकल जाती है. एंड ये लोग गिरते जाते गिरते जाते गिरते जाते बहुत देर तक गिरते. उसके बाद धम करके अ पाइल ऑफ लीव्स के ऊपर आके रुक जाते हैं. नाउ एलिस ढूंढने लगती है रूम में कि क्या है, कहाँ है. अगेन उसको वो रैबिट दिखता है. वो रैबिट एक डोर से बाहर निकल जाता है. अब वो देखती है कि वो डोर तो बहुत छोटा है, एक तो सा डोर है, वो तो अंदर भी नहीं जा सकती थी. तो वो देखती है उस डोर को. एंड देन उसको फिर ढूंढने पे रूम में एक ग्लास टेबल मिलता है. एंड उस पर होती है चाबी गोल्ड की. एंड शी ट्राइज टू ओपन दैट डोर. द डोर ओपन्स एंड शी लुक्स इनटू इट. एंड उसको उस साइड पे क्या दिखता है, वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन. बहुत सारे फ्लावर्स, फाउंटेन्स, बहुत कुछ था. सो शी सीज इट एंड शी विशेस कि काश मैं छोटी होती एंड मैं उस गार्डन के अंदर इस डोर में से जा पाती. राइट. सो दिस इज़ योर स्टोरी. दिस स्टोरी गोज ऑन अ लॉट इन मतलब यहाँ तक तो शायद स्मॉल पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है. इसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स दैट एलिस हैज़. So that's why I said ask your parents, they will get you Alice in Wonderland, then you can read it and you will know it is such a beautiful book. पता? ठीक है? So the story is an adaptation from famous Alice in Wonderland by Lewis Carroll. The story tells how a curious little Alice reaches the most beautiful garden in the world by following a rabbit who wore a red waistband. The story describes the adventures that Alice had. इसके आगे बहुत सारे एडवेंचर्स हैं. राइट. सो द स्टोरी इज़ अबाउट क्यूरियोसिटी. अब सोच के देखो, अगर एलिस को बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं होती तो वो रैबिट के पीछे नहीं जाती. अगर रैबिट के पीछे नहीं जाती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं है ना. सो इट्स ऑल अबाउट द क्यूरियस माइंड एलिस हैड. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड यू अंडरलाइंड ऑल द वर्ड्स दैट आई डिड. किया ना. वी आर डूइंग आवर एक्सरसाइजेस फॉर द चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड. You remember the story? The story was about Alice who follows a rabbit and falls into a hole and reaches a room where there is a small door, and when she looks through it, she looks into the world's most beautiful garden, right? So the story is basically about curiosity, है ना. अगर Alice curious नहीं होती तो she wouldn't have reached anywhere, right? So you should all keep up your curiosities, right? कभी ऐसा नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा मैं पूछूंगा तो. कभी नहीं. इफ़ यू डोंट नो समथिंग you should always feel free to ask, right? So we'll look into the new words. Scamper. Scamper is to move very fast. मतलब जब आप लेट हो रहे हो या डर, फियर है तो कैसे चलते, जल्दी जल्दी जल्दी. दैट इज स्कैम्पर. हरी. फास्ट. पॉप्ड. जम्प्ड. POPPED. पॉप्ड. जम्प्ड. डिसअपियर. गायब हो जाना. टू vanish. VA. to vanish. Disappear, गायब हो जाना. To vanish. Whiskers,
Whiskers, mustache of hairs on the rabbit's face. Rabbit nahi, animal. Animal's face. Right? Whiskers. So, scamper is to move very fast. S-C-A-M-P-E-R, scamper. H-U-R-R-I-E-D, hurried. मतलब जल्दी जल्दी. P-O-P-P-E-D, popped. D-I-S-A-P-P-E-A-R-E-D, disappear. Whisker, W-H-I-S-K-E-R-S, whiskers. Done? Okay? Next. While listening to the story, what did Alice see? वो जब अपनी बहन के साथ स्टोरी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा? Alice saw a white rabbit wearing a blue coat and carrying a watch. ठीक है? Alice saw a white rabbit wearing a blue coat and carrying a watch. ठीक है? Done ना? Next is, what was different about the rabbit that Alice saw? Okay, she saw a rabbit, है ना? She saw a white rabbit. क्या क्या different था about the rabbit? The rabbit Alice saw was wearing a blue coat, a red waistband, and it could talk. Right? So, the rabbit she saw, क्या क्या स्पेशल था उसके बारे में? वो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था एंड वेस्ट बैंड लिख दिया, वेस्ट कोट एंड इट कुड टॉक, वो बात कर सकता था. राइट? नेक्स्ट, where did the rabbit go? The rabbit popped into a very deep rabbit hole. वो कहाँ कूदा? वो एक rabbit hole में कूदा था, है ना? And वो rabbit hole कैसा था? बहुत deep. Right? The rabbit popped into a very deep rabbit hole. How did Alice reach Wonderland? Alice followed the white rabbit and jumped into a big rabbit hole. That took her to Wonderland. Wonderland capital letter में आएगा. Why? Because it's the name of a place. Wonderland is the name of a place. So Wonderland W capital आएगा.
Alice followed the white rabbit and jumped into a big rabbit hole that took her to Wonderland. ठीक है, उसने रैबिट को फॉलो किया एंड रैबिट एक गड्ढे में कूद गया, ये भी उसके पीछे पीछे कूद गई एंड दैट वे शी रीच्ड वंडरलैंड. What strange things did Alice see? उसने क्या देखा? Alice ने strange क्या क्या देखा? Alice saw a strange rabbit, a big hole, a very tiny door, a golden key, and the most beautiful garden ever seen. So, Alice saw a strange rabbit. एक strange सा rabbit देखा, एक बड़ा सा hole देखा, एक छोटा सा दरवाजा देखा, golden key देखा and world का सबसे beautiful garden देखा. Right? So, Alice saw a strange rabbit, a big hole, a very tiny door, a golden key and the most beautiful garden ever seen. Right? Next, describe in your own words the garden that Alice saw. How was the garden that Alice saw? Alice saw the most beautiful garden ever seen. It was full of bright flowers with lots of birds and butterflies. It also had fountains. Done? So, you have to describe it in your own words. Alice saw the most beautiful garden ever seen. उसने जो garden देखा था वो अभी तक उसने इतना अच्छा garden कभी नहीं देखा था. It was full of bright flowers. बहुत सारे flowers थे. With lots of birds and butterflies. बहुत सारे different birds और butterflies थे. It also had fountains. है ना, पानी के फव्वारे, वो तो chapter में ही है. So there were a lot of beautiful things in the garden. If you want to add on something, कि आपको क्या लगता है उस garden में क्या हो सकता था, you can add it on. ठीक है? Draw the garden of your dreams. Okay, we'll come back to this question. Pick the correct answer. The rabbit had white eyes, big eyes, pink eyes. Pink eyes. Who was burning with curiosity? किसको क्या हो रहा है जानने की इच्छा हो रही थी? Alice, the rabbit or the children? Alice. Who fell down and down and down? कौन गिरता जा रहा था नीचे नीचे नीचे? Alice and the rabbit. इसमें दो है, Alice भी और rabbit भी, दोनों कूदे थे. ठीक है? Who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? कौन बोला था? Rabbit. Whiskers और ears तो rabbit के ही है ना. The garden Alice saw was big, lovely, small. उसने जो garden देखा था वो कैसा था? Lovely and big. है ना? उसने बहुत बड़ा सा garden देखा था. Find one word from the story that means. Okay, now you have to
find words that from the story which means to walk fast. Fast is hurry, HURRY. To think, WONDER, wonder. Happy, delight, DELIGHT. To be seen nowhere, जब कहीं नहीं दिख, जो नहीं दिख रहा है कहीं पे. Disappear. At once, एकदम. QUICKLY, quickly. To move fast, scamper. And to be inquisitive, curious. Inquisitive मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखना. Inquisitive, हमेशा कुछ नया सीखने का एक वो रहता ना कि यस मुझे ये भी देखना है, मुझे वो सीखना है, ये सीखना है. That feeling is inquisitive. It's called curiosity. ठीक है. So to walk fast is to hurry, to think, wonder, happy, delight, to be seen nowhere, disappear, at once, quickly, move fast, scamper, to be inquisitive, curious. Right? Give another word for the ones given below with similar meaning and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. Okay. नीचे आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए, लवली, टॉकिंग, लिसनिंग, सी एंड सेंटर. सो यू हैव टू फर्स्ट राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स. आपको पहले ऑपोजिट्स लिखने हैं. लवली, अगली. लवली इज समथिंग ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा. अगली इज जो देखने में अच्छा नहीं है. टॉकिंग, जो बात कर रहा है, बात हो रही है. शांत इज टू साइलेंट और क्वाइट. लिसनिंग, जो सुन रहा है. डेफ, जो नहीं सुन रहा. सी, देखना, नहीं देखना इज ब्लाइंड. सेंटर, बीच में. सेंटर का ऑपोजिट कॉर्नर या फिर एज. राइट. सो लवली, अगली, टॉकिंग, क्वाइट, लिसनिंग, डेफ, सी, ब्लाइंड, सेंटर, कॉर्नर. Okay, now you have to make sentences with them. Lovely. I saw a lovely garden. Okay. Next is talking. The teacher asked Ram to stop talking. ना क्लास में टीचर यही करती है ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. राइट. लिसनिंग, I was listening to a story. I was listening to a story. मैं एक स्टोरी सुन रही थी. See, did you see the movie? क्या तुमने मूवी देखा? लास्ट इज सेंटर. सेंटर का क्या सेंटेंस बनाओगे? I left my pen in the center of the room. रूम के बीच में कहीं पे अपना पेन छोड़ दिया मैंने. ठीक है. सो आई सॉ अ लवली गार्डन. टॉकिंग, द टीचर आस्क्ड राम टू स्टॉप टॉकिंग. लिसनिंग, आई वॉज लिसनिंग टू अ स्टोरी. सी, डिड यू सी द मूवी? सेंटर, आई लेफ्ट माई पेन इन द सेंटर ऑफ द रूम. ओके. As I always say,
ऑपोजिट्स सेम रहेंगी, सेंटेंसेस इज ऑन यू. अगर आपको चेंज करना है तो प्लीज चेंज कर लो, यू हैव फुल फ्रीडम फॉर दैट. ठीक है. Imagine you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? अच्छा, do you know what is there in the center of the earth? ये आपका अर्थ है. ठीक है. ये अजीब सा अर्थ हो गया. ओके, ये आपका अर्थ है. अगर इसको मैं कट कर दूं यहाँ से दिखाने के लिए कि सेंटर में क्या है, ये अलग अलग लेयर्स होते हैं इसकी. ठीक है. अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर तो हमारा, अरे यार, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो बहुत रफ लेयर है जो हमें दिखती है. ठीक है. लैंड, ट्रीज, वाटर, ये सब यहाँ होता है. उसके बाद वो होता है क्रस्ट. ठीक है. काफ़ी मोटी होती है. उसके बाद आता है मैंटल. सबसे लास्ट में आता है कोर. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ को अगर आप कट करके केक की तरह काट के देखोगे तो सबसे बीच में कोर मिलेगा. एंड कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन लावा. मोल्टन लावा मतलब लावा क्या होता है? लावा लावा होता है ना. लावा, लावा को तो लावा ही बोलते हैं. सो अर्थ का जो सेंटर पोर्शन है, इट इज़ वेरी हॉट. इट इज़ वेरी हॉट. हम लोग के बर्दाश्त के बाहर जैसा हॉट है. सो इमेजिन यू आर गोइंग टू अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर आपको अर्थ के सेंटर में जाने का एक जर्नी मिला तो व्हाट डू यू थिंक यू विल सी? व्हाट वुड यू फील? Now, if I go to the center of the earth, there will be a ball, a big ball of molten lava, and it will be very hot there. ठीक है. So if you reach the center of the earth, you will see that वहाँ पे बहुत गर्मी है एंड वहाँ पे मोल्टन लावा मिलेगा. एंड ये जो मोल्टन लावा है इसमें बहुत सारे मेटल्स एंड मिनरल्स सब मिलते हैं. ठीक है. Alice follows a strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make questions. उल्टा पुल्टा जम्बल्ड वर्ड्स हैं, आपको उसका सेंटेंस बनाना है एंड दे आर क्वेश्चंस. Talk rabbit a how can. How can a rabbit talk? Question mark. Why question mark? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. Going he is where. Where is he going? ठीक है. जब क्वेश्चन फॉर्म करना होता है तो वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन से यूजुअली क्वेश्चन स्टार्ट होता है. सो दैट इज अ क्लू फॉर यू. रीड ही कैन टाइम द. कैन ही रीड द टाइम. नेक्स्ट इज हरी इज इन अ वे. व्हाई ही. Why is he in a hurry? Done. ठीक है. Why, where, what, when, can, did, are, ये words start होते हैं sentence में if it's a question. ठीक है. So you can remember that and form questions accordingly.
right? So we are left with the draw the garden of your dreams. Okay, now it's an imaginary question, not necessary कि आपके गार्डन में फ्लावर्स हो, देन फाउंटेन हो, यही सब हो, कोई ज़रूरत नहीं है. आपके गार्डन में डायनासोर्स हो सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज़ अ गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. सो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्क्वायर और मेक अ रेक्टेंगल इन योर कॉपी. ठीक है. एक अच्छा सा स्केल से अच्छा सा बॉक्स बना लेना, उसके बाद उसके अंदर बनाना. एंड प्लीज डोंट यूज स्केच पेन्स. ठीक है. सो देयर यू गो. एनी आइडिया क्या बन रहा है? ओके. माई गार्डन इज गोइंग टू बी अ मशरूम गार्डन. Right? Then I am going to have a lot of greenery. Right? Then along with that थोड़ा बहुत फ्लावर्स तो चलेंगे, है ना? थोड़े बहुत फ्लावर्स चलेंगे. चलो. Make it, please make it colorful. ठीक है. Don't do this. Make it colorful. And मेरे गार्डन में जो ट्रीज होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे. यस, बहुत छोटे छोटे ट्रीज बनेंगे मेरे गार्डन में. Now you need butterflies. Yes, you need a butterfly. There you go, butterfly be ready. Done. This is your garden. This is just an example. आपके गार्डन में सब अच्छी अच्छी चीज़ें होना कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब जो लवली लवली चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है. आपके गार्डन में फेरीज हो सकती हैं, आपके गार्डन में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, फाउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर हो सकता है, एनीथिंग यू वांट. ठीक है. यू कैन मेक वॉट एवर यू वांट इन योर गार्डन. ठीक है. इट्स अ गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. It is completely on you what you want in your garden. ठीक है. So that ends with your Alice in Wonderland, right? I'm really very sad कि ये chapter खत्म हो गया. It's a beautiful story and as I said, please ask your parents to get you a book of Alice in Wonderland and please read it. आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. So that ends with the chapter. We have done all the exercises, story, word meanings, everything. Please keep your notebooks neat and clean, right? I hope आपने सब complete कर लिया है. I will meet you next time with a new story and poem. Till then, take care. Bye bye.